My screen is visible to you all. It's visible, Prabhuji. Okay, thank you. So today's topic is on demigod, which is further extension of the last topic that we have covered. So before going through that session, we'll just quickly go through Sri Namamrita. Then we'll chant one round of Hare Krishna Mahamantra. And then we'll start to understand that session. Sri Namamrita, is this visible to you all? Can anyone like to read Yes. it? Anyone like to read it? Hare Krishna. Shall I read, Prabhuji? Yes, Mataji. Sri Namamrita, to taste the nectar of the holy name, great demigods and sages, and even Krishna himself descended in human form. During the incarnation of Lord Chaitanya to inaugurate the Krishna consciousness movement, even such personalities as Lord Brahma, Lord Shiva, and the four Kumaras took birth upon this earth, being allured by ecstatic love of Lord Krishna. All of them, including the great sage Narada and devotees like Prahlada, came here as if human beings chanting the holy names of Lord Krishna together and dancing and floating in the inundation of love of Godhead. The goddesses of fortune and others, allured by love of Krishna, also came down in the form of human beings and tasted the holy name of the Lord in love. What to speak of others? Even Krishna, the son of Nanda Maharaja, personally descends to taste the nectar of love of Godhead in the form of the chanting of Hare Krishna. Chaitanya Charitamrita, Anchalila 3.262 to 65. So this chanting of Hare Krishna Mahamantra. So we all are aware that whenever Lord take his incarnation in this material world, then he's always accompanied by many of the demigods. So same was the case when Lord Chaitanya Mahaprabhu, who was Krishna himself, decided to take to appear in this material world in Kali Yuga. And this is an special incarnation because Chaitanya Mahaprabhu, he was Krishna himself, but in the mood of Radharani, or you can say that Krishna and Radharani combined. So that's why the complexion of Chaitanya Mahaprabhu is just like a molten gold. That's why he's called uh, Gauranga, or the golden incarnation of Lord, because the complexion of Radharani is just like a molten gold. So Chaitanya Mahaprabhu was carrying the complexion also of Radharani, also the mood of Radharani. And what is the mood of Radharani is basically how to serve Krishna in a best possible manner, and basically to if Radharani is mood, you will see that it's always uh, remembering Krishna in separation. So like we all know that during his pastimes as Krishna, so Radharani was always feeling separation of Krishna. Okay, even though Krishna was present, but then also when Krishna was present also in Vrindavan along with him, but there are many of the pastimes of Radharani that that at that point of time as well she was feeling separation of Krishna. Similarly, when Krishna has left Vrindavan for Mathura, then she was always remembering Krishna in the uh, loving separation. So same was the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that he was always feeling the separation of Krishna. So he was basically trying to taste the same mellow that his devotees are experiencing. So and this Hare Krishna Mahamantra also means that basically we request the potency of Krishna to engage us in the loving devotional service to Krishna. So that's why Chaitanya Mahaprabhu, when he came, he gave us this holy names, this Hare Krishna Mahamantra, so that if anyone will chant this
basically with pure state of mind, following four regulative principle, then they will also start to experience the same love for Krishna, which the devotees were having. So during the incarnation of Lord Chaitanya, sorry, I was just speaking only on English. Sorry, I'll speak in Hindi as well. So भगवान के पवित्र पवित्र नामों का अमृत को चखने के लिए ही बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे ऋषि मुनि, इवन कृष्णा स्वयं भी भौतिक जगत में मनुष्य का रूप लेकर प्रकट हुए थे. सो जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना इनकारनेशन लिया था टू इनॉग्रेट दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, सो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट हम लोग समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में होने वाला सबसे बड़ा मूवमेंट या सबसे बड़ा मौका है सारे सारे के सारे बद्ध जीवों के लिए गोलोक वृंदावन वापस जाने का. क्योंकि इससे पहले कभी भी जब, क्योंकि भगवान ही, अगर भगवान का लव ऑफ गॉड हेड जो है, यानी भगवान के प्रति प्रेम है, वो भगवान स्वयं ही दे सकते थे. तो ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को भगवान स्वयं ही आके इनॉग्रेट कर सकते थे. तो इसलिए ही वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भगवान स्वयं आए उसकी अथॉरिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी बताने के लिए. तो हम लोग ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुना ही है कि जितने भी पुराण हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पहले लिखे गए, उन सब में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है. भले वो कोई भी पुराण हो, गरुण पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, अग्नि पुराण हो, भविष्य पुराण हो, श्रीमद् भागवतम हो, हर जगह पर भगवान का, चैतन्य महाप्रभु के रूप का वर्णन है. तो जिस समय चैतन्य महाप्रभु है, उस समय जितनी भी ग्रेट पर्सनैलिटीज थी, जितने भी डेमिगॉड्स थे, वो बड़े लॉर्ड ब्रह्मा हो, हरिदास ठाकुर जो कि हम लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के समय में थे, कभी हम लोग अलग से उनकी चर्चा करेंगे. लॉर्ड शिवा यानी कि श्री अद्वैता जिन्हें हम लोग जानते हैं पंच तत्व में, वैसे ही फोर कुमारास और बहुत सारे लाइक नारद मुनि, श्रीवास ठाकुर, प्रहलाद, तो ये सारे के सारे मनुष्य के फॉर्म में आए थे एंड दे ऑल चैंटेड द नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा टुगेदर. तो उन्होंने भगवान का जो संकीर्तन यज्ञ था, यानी भगवान के साथ, भगवान जब भौतिक जगत में आए थे तो उन्होंने संकीर्तन का शुरुआत करी. संकीर्तन मतलब जो हरे कृष्णा को ऊंचे स्वर में सब लोग, सारे डिवोटीज मिलके कीर्तन करते थे. भले वो नवदीप मायापुर धाम हो या जब भगवान ने संन्यास ले लिया था तो भगवान जगन्नाथपुरी धाम में थे, तो सारे भक्तगण, क्योंकि भगवान कभी भी किसी भगवान कभी भी नॉन डिवोटीज वगैरह के साथ या जो भक्त अभक्त हैं उनके साथ कभी आदान प्रदान नहीं करते. तो भगवान के आदान प्रदान के लिए भी जितने भी देवी देवता या जितने भी भगवान के भक्त होते हैं, जितने भी संत महात्मा होते हैं, वो सब अगर वो दूसरे लोकों में भी रहते हैं तो वो भगवान का जिस समय जिस प्लेनेट पे प्राकट्य होता है वहां पर भगवान को अकम्पनी करने आते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ ही अपना जो लीलाएं हैं वो प्रदर्शित करते हैं. तो उन्हीं के साथ जब चैतन्य महाप्रभु का ये रूप का वर्णन हुआ, अगर आप लोग कोई भी चैतन्य चरित्रामृतम पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि कितनी ज्यादा नेक्टेरियन, अमृत से भरे हुए वो पास टाइम्स हैं, किस तरीके से भगवान ने यहाँ पर अलग अलग लीलाएं करी हैं और बहुत ही ज्यादा सुंदर है. अगर कोई भी उसे पढ़ेगा तो वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत अधिक आकर्षित हो जाएगा. सो भगवान स्वयं ही आए थे, कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड टेस्टेड, और उनके साथ सारे देवी देवता, एंड दे टेस्टेड द होली नेम ऑफ लॉर्ड इन लव. तो उनके साथ, भगवान के साथ कीर्तन करके भगवान का प्रेम उन्होंने उससे पूरी तरीके से उसका स्वाद चखा. What to speak of others when Krishna, the son of Nand Maharaj, personally descended to taste the nectar of love of Godhead in the form of chanting of Hare Krishna. So, औरों की क्या बात करी जाए, भगवान स्वयं भी, यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने स्वयं भी अपने नामों का रस चखा. तो हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान का नाम किसी भी तरीके से कम नहीं है. भगवान का नाम के, भगवान स्वयं भी अपने नामों में जो रस है उसको आस्वादन के लिए उन्होंने यहाँ पर भौतिक जगत में अपना प्राकट्य किया था. तो हम सब लोग अगर कोई भी प्योरली भगवान के नामों का जप करता है, इसलिए एकदम ये ओपन मंत्रा है कि कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो वो खुद ही इसकी शक्ति को देख सकता है कि किस तरीके से जो इल्यूजन, कितना भी ज्यादा अगर कोई किसी को कितना भी समझाने की कोशिश करे इस भौतिक जगत के बारे में, लेकिन कोई नहीं समझ सकता. लेकिन अगर कुछ नहीं भी समझाया जाए और सिर्फ अगर वो हरे कृष्ण कीर्तन सुनता रहे किसी प्योर डिवोटी के मुख से, यानी कि अगर कोई रिकॉर्डिंग भी है श्रील प्रभुपाद की या डिसाइप्लिक सक्सेशन में गुरु हैं जैसे हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज की, या जिसको जो भी
गुरु के मुख से अगर हरे कृष्ण महामंत्र को सुनता रहे, अभी अगर वो अगर तो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है कि वो किसी भी रूप में नष्ट नहीं होता, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू यूट्यूब में भी वो हरे कृष्ण महामंत्र सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, तो भी उसका वही प्रभाव होगा। अगर कोई उसको सुनता रहेगा तो साफ हृदय से, तो अपने आप ही जितना भी भौतिक कलमश है उसका वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब भी चैंटिंग करें तो बहुत ही सावधानी से करें, उससे इम्पोर्टेंट कोई भी और काम नहीं होता है। अगर कोई प्योरली चैंट कर रहा है तो वो खुद से रियलाइज कर सकता है चीजों को, और खुद रियलाइज करेगा तो अपने आप ही वो और आसानी से, क्योंकि खुद के रियलाइजेशन से वो और आसानी से भक्ति में प्रोग्रेस करके इसी जीवन के रहते रहते ही चीजों को समझ पाएगा, क्या भौतिक जगत है, क्या आध्यात्मिक जगत है, क्या भगवान के साथ उसका संबंध है, वो सारी चीजें समझ के वो अंत में भगवान के धाम वापस जाएगा। तो हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्रा का जप करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे का सेशन शुरू करेंगे। तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने को और हम लोग चैंट करेंगे एक राउंड। हरे कृष्णा आप लोग को सुनाई दे रहा है? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? यस प्रभु जी। जी प्रभु। तो आप सब लोग अगर चैंट बैग है, बीट्स हैं तो वो बेस्ट है, नहीं तो साथ में ऐसे ही रिपीट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधरा, श्री अद्वैता गदाधरा, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्णा चैतन्य, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। Let me know if my screen is visible to you. Hare Krishna. Can anyone unmute yourself and tell me this? It is visible. Okay. Uttam Vasudha Mataji. Uttam Vasudha Mataji, you can hear me? It's visible, Prabhuji. We can see it. So today's topic is on demigod, where we'll further understand the positions of demigod. So there is a text called Brahma Samhita, which is the realization of Brahma, written down by Brahma. So here, there in Brahma Samhita, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने अपना रियलाइजेशन और भगवान का रियलाइजेशन जो उनको हुआ, जो उन्होंने अपने विजन से देखा, वो सब कुछ लिखा था। तो उस ब्रह्म संहिता को जैसे हम लोग मॉर्निंग के समय
श्रृंगार आरती के समय गाते भी हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी उसमें। तो उसका एक वर्स है 5.48 जो यहाँ पर दिया हुआ है, यस्यैक यस्यैक निस्वासिता कालम अथवलंबया जीवन्ति लोम विलजा जगत अंडनाथ विष्णुर्महान स इहा यस्य काल विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सो उसमें बताया गया कि कृष्णा के एक्सपेंशन होते हैं, लाइक फर्स्ट एक्सपेंशन, सेकंड एक्सपेंशन एंड थर्ड एक्सपेंशन। जो थर्ड एक्सपेंशन है दैट इज महाविष्णु। So Mahavishnu's potency is described in Brahma Samhita as Yasyaika Nisvasita Kalam Athavalambaya. Nisvasita Kala means the breathing period. Just abiding by the breathing period of that Mahavishnu, Jivan Tiloma Vilaja Jagat Andanatha. Jagat Andanatha means the supreme creature, supreme created creature, that is Brahma. Brahma is the supreme, principal supreme creature in each every universe. There are innumerable universes and there are innumerable Brahma also. तो जो महाविष्णु है वो जितनी बार इनहेल और एक्सेल करते हैं, तो जितनी बार भी वो एक्सेल करते हैं तो सारे के सारे ब्रह्मांड जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। फिर उन सारे ब्रह्मांड्स में भी महाविष्णु का फर्दर एक्सपेंशन गर्भोदक्षाई विष्णु जो होता है वो पूरे यूनिवर्स में, सारे यूनिवर्सेस में चला जाता है। फिर उनका फर्दर एक्सपेंशन क्षीरोदक्षाई विष्णु सब सारे उसके अंदर एक एक एटम्स में, इवन सारे जितने भी मनुष्य होते हैं उन सब में परमात्मा रूप में वो सब स्थान ले लेते हैं और उसी से पूरा का पूरा जो जगत है वो चलता है। तो इसमें बताया गया कि इवन कृष्ण भगवान के एक्सपेंशन महाविष्णु की ये पोटेंसी है कि जब वो वापस इनहेल करते हैं तो उसी समय सारा का सारा ब्रह्मांड जो है वो उनके अंदर, उनके पोर्स में, यानी जो उनके स्किन के पोर्स हैं उसमें वापस चला जाता है। और उसी के साथ ही ब्रह्मा जो कि जिनका ड्यूरेशन लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है, 100 ईयर्स साधारण 100 ईयर्स नहीं, उनका 100 ईयर्स को का कैलकुलेशन इसमें भी आई थिंक दिया हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग आगे इसमें आएगा कि ब्रह्मास पीरियड जो है वो भगवद गीता में लिखा हो सहस्त्र युगा पर्यंतम अर्हद यद ब्रह्मणो विदु। सो द ब्रह्मास 1 day means you can see 1 tens 100,000 10,000, so it's 43 lakhs times 1000, so that is Brahma's 1 day, that is 12 years, sorry 12 hours। और 12 hours का अगर डबल कर दो, इसी को 2 times कर दो तो यानी 86 lakhs times 1000, उतना एक दिन के बराबर वहां, यानी एक दिन होता तो यहाँ पर इतना समय बीत जाता है अगर यहाँ के सालों से उसकी तुलना करी जा रही है। तो उस तरीके से एक दिन, उसी को फिर मल्टीप्लाई कर दो 30 days से तो 1 month, फिर उसी को फर्दर 12 से तो 1 year, और इस तरीके का जो 100 years जो होता है वो ब्रह्मा का लाइफ स्पैन होता है। तो ब्रह्मास का लाइफ स्पैन हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बिलियंस ऑफ ईयर्स है, बिलियंस ऑफ ईयर्स, जो कि तो ब्रह्मा के एक दिन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बार यहाँ पर भौतिक सृष्टि को यहाँ पर कई सारे युग बीत जाते हैं। तो उसका पूरा कैलकुलेशन है वो कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसका पूरा सूर्य सिद्धांत में वो पूरा कैलकुलेशन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने दिया हुआ। परंतु हम लोग इतना समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन इतना बड़ा है कि उसमें कितनी बार ही पृथ्वी पे बार बार प्रलय आती है और फिर से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इस तरीके का साइकिल चलता रहता है। और वंस इन ए डे ऑफ ब्रह्मा में ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ये भगवान के जो अवतार हैं, यानी कृष्णा स्वयं या फिर चैतन्य महाप्रभु या और भी जो अवतार हैं, नरसिंह देव, ये सब लोग आते हैं। और ये सब लोग जब आते भी हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही तरीके का पास टाइम्स होता है, हर बार अलग अलग तरीके का पास टाइम्स होता है। तो अभी जल्दी ही जैसे नरसिंह देव का अपीयरेंस डे था, तो नरसिंह देव जब इस बार आए थे तो उनका जो पास टाइम्स था वो हम लोगों को पता ही है कि प्रहलाद महाराज किस तरीके से प्रहलाद महाराज को वो परेशान कर रहे थे और किस तरीके से वो पिलर्स से निकले थे। तो वैसे ही वो पहले के युगों में जब नरसिंह देव आए थे तो थोड़ा डिफरेंट पास टाइम्स था कि वो एक बहुत ही बड़े एरिना में
हिरण्यकश्यप के आए थे और उस एरिना में हिरण्यकश्यप की बहुत सारी मिसाइल्स थी जो उसने उनके ऊपर फायर करी, बट उन्होंने सारी की सारी वहीं डिस्ट्रॉय कर दी और फिर इस तरीके से फाइट हुआ। तो भगवान की इनकारनेशन अलग अलग युगों में बार बार आते हैं ताकि लोग उनकी भक्ति करके इस साइकिल से निकल सकें। तो एक प्रकार से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो चक्र है ये बार बार भौतिक जीवन को वैसे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता रहता है और उस डिफरेंस के और वो डिफरेंस भी पूरा पूरा भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग भगवान की अलग अलग लीलाएं होती हैं। तो उसको इस तरीके से समझा जा सकता है जैसे हम लोग एक ही जगह अगर 2 बार घूमने जा रहे हैं तो ठीक है वही सब प्लेसेस कवर करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो वैसे ही भौतिक जगत में जब जब भगवान आते हैं उनके अलग अलग अवतारों के रूप में थोड़ा थोड़ा पास टाइम्स उनका डिफरेंस होता है। और कई बार जो ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है उसमें एक ही युगों का नहीं, पहले के युगों के भी भगवान के अवतारों का वर्णन है कि वो किस तरीके से वो पास टाइम्स करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में महात्मा बुद्ध का इस समय के पास टाइम्स के अलावा पहले के समय के पास टाइम्स का भी वर्णन है कि एक युग में ऐसा भी होगा कि पृथ्वीवासी जो होंगे वो दूसरे ग्रहों के लोगों पे अटैक करेंगे, उन्हें अकारण ही मार रहे होंगे और महात्मा बुद्ध उस पे कंट्रोल करेंगे। तो जो कि इस युग में ऐसा नहीं हुआ था। इस युग में जब महात्मा बुद्ध आए थे तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी कि लोग और दूसरे ग्रहों में अटैक करके और दूसरे ग्रहों के लोगों को, वासुओं को मार सकें। इस युग में जब आए थे तो बहुत ही ज्यादा एनिमल सेक्रीफाइसेस वगैरह इंसान लोग कर रहे थे, Yes, तो उसको महात्मा बुद्ध ने कंट्रोल किया था। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कर रहे हैं, हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं, हम कुछ करेंगे तो उससे कुछ नया पूरा एकदम कुछ दुनिया की तरक्की हो जाएगी। एक्चुअल में पूरी तरीके से जो भौतिक जो हम लोग के भी क्रियाकलाप होते हैं वो काफी हद तक कंट्रोल्ड होते हैं भगवान, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने हमें फ्री विल दी होती है कि उन्हीं कार्यकलापों के बीच में अगर हम लोग चाहें तो भगवान को हम लोग ध्यान कर सकते हैं और वही लॉज ऑफ कर्मा का रिजल्ट झेलते झेलते उसका जो रिएक्शन है उसको हम लोग अपना चेंज करके, अगर कोई भक्ति करता है तो उसका फर्दर रिएक्शन वो नहीं करता। जैसे कि अगर कुछ उसके लाइफ में बुरा हुआ तो वैसे क्या हो सकता है वो क्रोध में आके और कुछ कुछ एक्शन ले, लेकिन जब वो भक्ति करता है तो वो समझ पाता है कि वो उसी के पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिल रहा है, तो उसको भक्ति भाव से, उसके बावजूद भी वो भक्ति में अडिग रह के भक्ति करते हुए अपना जीवन निर्वाह करता है। जो एक्शन का जो उसका रिएक्शन आता है उसको वो एक्सेप्ट करता रहता है और फर्दर नए रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करता, और उसकी वजह से जब वो उसका जब ये जीवन समाप्त होता है तो वो उसके बाद लौट के गोलोक वृंदावन वापस चला जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हम लोगों का, भले हम लोगों को लगता है हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि महाविष्णु जब एक बार इनहेल और एक्सहेल, अगर हम लोग देखें हम लोग का सांस निकालने और सांस लेने का समय कितना कम है, उसी के समय में पूरा पूरा ब्रह्मा का, जिनका लाइफ स्पैन इतना अधिक है, जिसमें कितनी बार ही यहाँ पर सारे युगों का परिवर्तन होकर बार बार यहाँ पर तो 2 तरीके की प्रलय होती है। एक प्रलय जो होती है जो 4 युगों के बाद आती है, और एक प्रलय जो बड़ी प्रलय होती है वो जब ब्रह्मा जी का भी अंत होता है उस समय आती है। तो यानी कि कितनी सारी छोटी छोटी प्रलय आने के बाद एक मैक्सिमम प्रलय जो होती है जिसमें पूरा का पूरा वो ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाते हैं, तो उतना महाविष्णु का ब्रीदिंग पीरियड है। और उसी बीच में हम लोग क्रिएट होते हैं और हम लोग अपनी अलग अलग एम्बिशंस, अलग अलग एम्स और अलग अलग लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं बाई बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाई द मटेरियल एनर्जी ऑफ लॉर्ड माया देवी के द्वारा, और उस तरीके से हम लोग अपना भौतिक जीवन वेस्ट कर देते हैं और उसी तरीके से बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में जाते रहते हैं। परंतु अगर कोई भी समझने की कोशिश करता भगवान के विषय में तो वो सारा का सारा ज्ञान भगवान ने ही ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके द्वारा वो समझ कर भक्ति करके इस साइकिल से निकल सकता है, जिससे निकलना और देवी देवताओं के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो हम लोग समझेंगे क्या क्यों मुश्किल है। So you'll find in Chaitanya Charitamrita it is quoted from Srimad Bhagavatam that once sometimes it is called Leela pastime, that Brahma, when Krishna was here on this planet, so Brahma was very much proud that Krishna is now in earthly planet, and this earthly planet is one of the innumerable planets under my control. Brahma is the controller, is the primal principal living entity in this universe. So he was little proud that Krishna is within my control.
So therefore Krishna, because he's Paramatma, he knows everything. What one thing, what one does. So Krishna asked Brahma to come and see him. So Brahma came. Brahma came. His doorman uh, informed Krishna. That doorman asked Brahma, "Who are you, please?" Now you. So then Brahma replied that now you say Krishna that I am Brahma. I have come to see him. So when the doorman informed Krishna that in Dwarka, uh, when Krishna was there as king, so Krishna asked, "Oh, which Brahma?" So which Brahma? The doorman came back again and informed that which Brahma you are. So Brahma became astonished. Which Brahma? I am the Brahma. I am the supreme creature within this universe. And which Brahma? He was surprised and he said, "Tell Krishna that four-headed Brahma. The Brahma has four heads." So Krishna called him. All right, come on. So he came and he offered his obeisances. And Brahma asked him, Krishna, my lord, may I ask you some question? What is that? Your doorman asked me which Brahma? So does it mean there are other Brahmas also? Krishna said, yes, there are innumerable Brahmas. You are only four-headed. There are eight-headed, there are 16-headed, 30-headed, 64-headed, 128-headed, and millions of headed. So all right, I am calling them all. So Krishna called all the Brahmas, and by his Maya, Brahma could see them. But they could not see his four-headed Brahma. See this four-headed Brahma, and each of them came and offered obeisances to Krishna, and they asked, "My Lord, what can I do for you? You have asked me. Yes, I have not seen you for so many times, so many days. So I have called you." So they came, thousands and millions of Brahma came and offered obeisances, and they went away. And the Brahma, four-headed Brahma, remained in the corner. Oh, what is that? I am. So this is Krishna's creation. तो भगवान कृष्ण के बारे में हम लोग इस पास टाइम से समझ सकते हैं। जनरली लोग बहुत पफड अप हो जाते हैं। अगर हम लोग देखें भौतिक जगत में भी हम लोग महाभारत वगैरह देखते हैं और फिर बोलते हैं कि अरे कृष्णा तो छलिया थे और कृष्णा ने तो जानबूझ के युद्ध करा दिया, वो चाहते थे युद्ध रोक सकते थे। ऐसी ऐसी बातें हम लोग करते हैं, तो हम लोग एक्चुअली समझते नहीं है कि कृष्ण भगवान की पोजीशन क्या है। तो जब ब्रह्म तो माया के द्वारा कवर कोई भी हो सकता है, भले वो हम लोग हों या स्वयं सुप्रीम क्रिएटेड क्रिएचर यानी ब्रह्मा हो, वो भी भगवान की माया के द्वारा भ्रमित हो सकता है। तो इसमें उस पास टाइम का वर्णन हुआ है कि एक समय जब तो इस पास टाइम से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसे बोलते हैं ब्रह्म विमोचन लीला। ये श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। ब्रह्म विमोचन लीला ब्रह्मा जैसे इंद्रदेव थे, इंद्रदेव ने जब देखा कि सब लोग उनका इंद्रदेव को अपनी ऑफरिंग्स नहीं दे रहे, तो बहुत ही क्रोधित हो गए थे और उन्होंने वर्षा करनी शुरू कर दी थी। और किस तरीके से कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तो उनका घमंड उस समय टूट गया था। लेकिन फिर फाइनली ब्रह्मा को भी ऐसा लगा कि अरे ये ग्वाला जो है वो रियल में कृष्णा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे इसको टेस्ट करना चाहिए। तो क्योंकि उनको थोड़ा प्राउड था कि यार ये पूरा भौतिक जगत मैंने क्रिएट किया और उसमें एक छोटा सा एरिया मैंने बनाया हुआ है वृंदावन का, और उसमें पूरे यूनिवर्स के मास्टर अगर कृष्णा आए हुए तो मैं जरा टेस्ट करता हूँ कि वही कृष्णा है कि नहीं। तो इस तरीके से ब्रह्मदेव अपने हंस वाहन पे सवार होकर आए। उन्होंने जितने भी कृष्ण भगवान के जितने भी सखा थे, जितने भी फ्रेंड थे और जितनी भी उनकी गायें थी, उन सबको गायब कर दिया। लेकिन कृष्ण भगवान सब कुछ समझते थे, उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने गायब कर दिया है, तो और वो लेकर अपने साथी अपने लोक में चले गए एक पल के लिए ही। और उन्होंने सोचा कि एक पल आके मैं देखता हूँ कि अभी कृष्ण किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने आके देखा कि अरे मैं तो सब लोगों को लेके गया था और यहाँ पर सारे के सारे उनके गो फ्रेंड्स और सारे के सारे गायें वो सब के सब वहीं पर वैसे ही के वैसे मौजूद हैं। और उनको तो उन्हें समझ में आया जब उन्होंने ध्यान से देखा कि वो कृष्णा ने ही अपने को इतने सारे फॉर्म्स में, अपने सारे मित्रों के, अपने सारे गायों के फॉर्म में, गायों के बछड़ों के फॉर्म में अपने को एक्सपैंड कर लिया था। तो तब उन्हें अपनी गलती का रियलाइज हुआ कि ये तो भगवान स्वयं है। क्योंकि अगर कोई मिस्टिक योगी भी होता है तो मैक्सिमम अपने को ज्यादा से ज्यादा 9 भागों में विभक्त कर सकता है। तो हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि मिस्टिक योगी वगैरह भी काफी पावरफुल होते हैं। और कई बार पहले भी हम लोगों ने देखा कि लोग भ्रमित हो जाते हैं और कोई भी अगर थोड़ी बहुत योग विद्या दिखाता है तो उसी को लोग भगवान समझने लगते हैं। लेकिन भगवान उन सारे मिस्टिक योगी से भी बहुत बड़े होते हैं। करदम मुनि एक मिस्टिक योगी थे जिनके बारे में हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, लेकिन वो मिस्टिक योगी साथ साथ डिवोटी भी थे। तो वो देवहूति के साथ उनका विवाह हुआ था और
वो भगवान के भक्त भी थे, इसलिए कपिल मुनि ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। तो करदम मुनि इतने परफेक्ट मिस्टिक योगी थे कि वो अपने को मैक्सिमम 9 भागों में विभाजित कर सकते थे, यानी एक साथ ही 9 लिविंग एंटिटीज, हेलो, 9 लिविंग एंटिटीज के रूप में अपने को एक्सपैंड कर सकते थे। और उन्होंने, अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें दिखाया कि करदम मुनि ने किस तरीके से अपनी ताकत के द्वारा ऐसे विमान बनाए थे जो पूरे के पूरे शहर के बराबर थे, यानी पूरा शहर में वो अपनी पत्नी देवहूति को लेकर उन्होंने पूरा भ्रमण किया था। उनके विमान के अंदर अलग अलग झरने थे, अलग अलग महल बने हुए थे। और आज की डेट में अगर हम लोग बहुत बड़े विमान की भी बात करते हैं, बोइंग की भी बात करते हैं, तो अंदर हम लोग देखते हैं कि स्पेस एकदम कंजेस्टेड होता है, बहुत कम जगह होती है। परंतु आज का भी साइंस उस लेवल तक नहीं पहुंचा जिसमें मिस्टिक योगीज वगैरह जिस लेवल तक चीजें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन भगवान को बोला जाता है ही सुप्रीम मिस्टिक, क्योंकि जितने भी मिस्टिक्स भी होते हैं वो भगवान से अपनी एनर्जी को डिराइव करते हैं। तो बीइंग सुप्रीम मिस्टिक, तो ब्रह्मा जी को अपनी गलती समझ में आ गई कि ये तो भगवान के सिवा और कोई भी नहीं कर सकता है। तो उन्होंने तुरंत ही उनके जो सारे गोपा फ्रेंड थे उन सबको रिटर्न कर दिया। तो इस पे इसी पास टाइम से एक और चीज भी जुड़ी हुई है कि क्योंकि जब भगवान ने अपने ही को एक्सपैंड कर लिया अपने सारे फ्रेंड्स के फॉर्म में, तो अपने आप ही जितनी भी माएँ थी, जितनी भी गोपियां थी, उन सबके जिनके वो पुत्र थे, क्योंकि भगवान स्वयं थे उनके रूप में, तो उन सबको उनके प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम प्रतीत होने लगे उस एक वर्ष में। क्योंकि भले ब्रह्मा ने एक पल के लिए ऐसा किया था, वो एक पल में जाके उन्होंने चेक किया और देखा कि अरे सब बदल चुका है, यहाँ पर कृष्णा के स्वयं एक्सपेंशन, और उन्होंने तुरंत ही वापस कर दिया। लेकिन वहां पर जब एक पल ही बीता था, यहाँ 1 साल बीत गया। तो 1 साल इस भौतिक जगत में ऐसा हुआ कि कृष्ण भगवान के फ्रेंड्स की जगह कृष्ण भगवान स्वयं अपने एक्सपेंडेड रूप में अपने फ्रेंड्स की तरह एक्ट कर रहे थे। तो क्योंकि जब वो फ्रेंड्स अपने घर रिटर्न होते थे तो माओ को बहुत ही ज्यादा उनके प्रति प्रेम प्रतीत होता था, इसलिए क्योंकि वो कृष्णा स्वयं ही थे। और एक जीव की इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि वो कृष्ण से बहुत प्रेम करता है। तो जनरली वैसे भी वृंदावन में जब वो पास टाइम करते थे तो जितनी भी गोपियां होती थी या जितनी भी माएँ होती थी, वो सब कृष्णा को ही ज्यादा प्रेम करती थी, अपने बच्चों से भी ज्यादा। तो जब बच्चों के रूप में उनको कृष्णा ही मिल गए तो वो अपने बच्चों से भी बहुत प्रेम करने लग गए। फिर उनको सबको मन किया कि अरे हमारे बच्चे की हम लोग शादी कर देते हैं। तो उसी 1 साल में एक्चुअल में उन्होंने सभी की शादी कर दी थी। और तो इसीलिए लोग कई बार बोलते हैं कि अरे भगवान तो गोपियों के साथ अकेले जंगल में उन्होंने रस डांस किया, या राधा रानी से उनका विवाह क्यों नहीं है। तो एक्चुअल में उस समय ही जब वो कृष्ण फॉर्म में एक्सपेंडेड रूप में थे, तभी सारी गोपियों के साथ उन्हीं का विवाह हो गया था। तो ये भी भगवान की और लीला ही है। और वो गोपियां भी कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, वो सब भगवान की परम भक्त थी पिछले जन्म में, जो इस जन्म में भगवान के डिवोटीज के रूप में थी। जब भगवान की जितनी भी जो 16,000 रानियां भी थी, वो बहुत संत पुरुष थे जो कि इस जन्म में डिफरेंट डिफरेंट रानियों के रूप में आए थे। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से भगवान जो भी पास टाइम्स करते हैं, जो भी लीलाएं करते हैं, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं निकाल सकता है। और एक्चुअली हम लोगों को समझने का उतना बुद्धि भी नहीं होती। हम लोग भगवान को हम लोग एक इंसान के तरीके से देख के उनको कंपेयर करने लगते हैं, परंतु वो गलत है। तो ब्रह्मा देवता उस समय दिग्भ्रमित हो गए थे ब्रह्म विमोचन लीला के कारण। तो लेकिन बाद में जब उन्हें ये पता चल गया कि ये कृष्ण भगवान ही है, तो भी उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ कि अरे कृष्ण भगवान भी मेरे ही जो प्लेनेटरी सिस्टम है, जो मेरे ही अंडर में है, उसमें आकर वो अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा पफ्ड अप हो गए कि कृष्णा भी आज को मेरे कंट्रोल में है, मेरे अंडर, मेरे द्वारा बनाए हुए प्लेनेट में आज के दिन वो रह रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ऐसे बताया कि हम लोग को पता है कि परमात्मा के रूप में वो सब जीवों में विद्यमान है, और ब्रह्मा भी एक जीव ही है। तो वो किसी के हृदय में क्यों जो भी बात होती है वो समझ जाते हैं। तो अगर कोई प्योर डिवोटी भी बनता है, तो प्योर डिवोटी अगर कोई भक्ति करता है और प्योर डिवोटी बनता है, तो क्योंकि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, तो और अगर भगवान चाहे तो उस प्योर डिवोटी को सब चीज रिवील हो जाती है। तो इसीलिए कई बार होता है कि प्योर डिवोटी के सामने अगर कोई भी आता है, कितनी बार ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद के सामने कोई आता था और उसके मन में क्या भाव होते थे, श्रील प्रभुपाद वो पहले ही समझ जाते थे। तो किसी ने उनसे सवाल भी कर दिया श्रील प्रभुपाद से कि प्रभुपाद क्या आपको सब कुछ पता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, सब कुछ सिर्फ कृष्णा को पता है, लेकिन कृष्णा जितना चाहते हैं वो
स्पिरिचुअल मास्टर को रिवील कर सकते हैं उतना। तो इस तरीके से क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, तो जो चीजें सोच रहा है वो सब भगवान को, जो इवन सोच भी रहा रहता है, जो उसने एक्ट नहीं भी किया, वो सब भी भगवान की पूरे समझ में होता है। तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा क्या सोच रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सोच, और भगवान को किसी का भी घमंड करना पसंद नहीं, तो भगवान ने सोचा कि ठीक है, इसका मुझे घमंड खत्म करना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने इंद्रदेव का किया था, ये समझ के कि इंद्रदेव किस तरीके से घमंड में आ गए थे और अपनी ड्यूटीज ना करके वो लोग किस तरीके से उनकी पूजा या उपासना करते हैं उससे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे। तो जब ब्रह्मा आए तो उनके पास द्वारका में, तो उन्होंने जाके बोला कि अरे मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे अंदर आने दो। तो कृष्ण भगवान ने अपने द्वारपालों को लौटा दिया कि फिर से जाके पूछ के आओ कि कौन से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि कौन से ब्रह्मा पूछ रहे हैं, अरे जाके बताओ मैं 4 सिरों वाला ब्रह्मा। तो उन्होंने जाके बताया 4 सिरों वाला ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी अंदर आए और फिर उन्होंने बोला कि आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा, कौन ब्रह्मा, क्या और भी ब्रह्मा है? तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मा को भी नहीं पता था उस समय कि, यानी भगवान की जो सृष्टि है उसको बड़े से बड़े देवी देवता भी नहीं जानते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अनंत शेष जो है उनके हजारों मुख हैं, उसके बावजूद भी वो भगवान का वर्णन पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह ब्रह्मा भी पूरी तरीके से नहीं जानते थे। जो हम लोग भी अगर साइंटिस्ट आज की डेट में देखें तो वो सब भी एकदम नियरेस्ट प्लेनेट तक पहुंचने के लिए बताते हैं कि इतने लाख लाइट ईयर्स हम लोगों को समय लगेगा, यानी हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे, तब हमें इतने लाख सालों का समय लगेगा, तब हम लोग इस प्लेनेट में जाएंगे। तो इंसान की तो कोई बेसाथी नहीं है जिसको कुछ भी नहीं पता है, तो वो भगवान को तो कभी बिल्कुल समझ पाना उसके लिए बिल्कुल ही मुश्किल है, जो वो आसपास के ग्रहों के बारे में भी कुछ नहीं जानता। अगर थोड़ी बहुत रेत अगर वो किसी ग्रह से या किसी उल्का से अगर वो लेके आ जाता तो उसी में वो डांस करने लगता है कि अरे मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अब इस रेत को मैं परीक्षण करूंगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि फिर कि वो तो इंसान को जब इतना घमंड हो जाता है, तो ब्रह्मा जिन्होंने पूरा ये भौतिक जगत बनाया जिसके बारे में इंसान को बिल्कुल आइडिया भी नहीं है कि वो कितना बड़ा है, किस तरीके से काम कर रहा है, तो उनको भी घमंड होना लाजमी था। तो तो भगवान ने उनका घमंड दूर करने के लिए उनको बताया कि सिर्फ खाली तुम ही एक ब्रह्मा नहीं हो, तुम्हारे 4 हेड हैं। यहाँ 8 हेड वाले या फिर 16 हेड वाले, 32 हेड वाले, 64 हेड वाले, 128 हेड वाले, करोड़ों हेड वाले तक ब्रह्मा है। और डिपेंडिंग अपॉन जितना साइज, उस ब्रह्मांड का जितना साइज होता है, अभी तक अगर हम लोग देखें तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हब्बल वगैरह ये सब कुछ नहीं, इन लोगों का सबका कहना है कि एवर एक्सपैंडिंग है, इसका कितना डायमीटर है, कुछ उनका वो लोग उसे मेजर नहीं कर सकते कि क्या इसका पूरा अनुपात रेशियो है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ 4 हेड वाले ब्रह्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया हुआ है जिसको इंसान के समझ से बिल्कुल परे है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्रह्मा भी जो 8 सिर वाले, या 8 सिर वाले मतलब उसका दुगने बड़े ब्रह्मांड के मालिक, 16 सिर वाले मतलब उसके 4 गुना बड़े ब्रह्मांड के मालिक, 32 मतलब उसके 8 गुने बड़े, और करोड़ों सिरों वाले ब्रह्मा भी, यानी कि उसके करोड़ों करोड़ों गुना तक इस ब्रह्मांड से बड़े बड़े ब्रह्मांड है, और वो सारे भी भगवान की ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। तो उस समय फिर भगवान ने सारे ही ब्रह्माओं को निमंत्रण दिया, और सारे के सारे ब्रह्मा एक साथ ही भगवान के पास आ गए और भगवान को प्रणाम करने लग गए। लेकिन भगवान की माया के द्वारा वो सब लोग सिर्फ अपने को ही देख पा रहे थे और दूसरे ब्रह्माओं को नहीं देख पा रहे थे। बस खाली ये 4 हेडेड ब्रह्मा था, क्योंकि उसका इल्यूजन भगवान को दूर करना था, तो ये सारे और ब्रह्माओं को देख पा रहा था, और वो सब ने आके भगवान की स्तुति करी और फिर भगवान से पूछा कि आपने मुझे क्यों याद किया। तो भगवान ने बोला कि मुझे तुमसे मिलने की इच्छा थी, बहुत समय से तुम्हें देखा नहीं था, इसलिए तुम्हें याद किया। तो और सारे ब्रह्मा और दूसरे ब्रह्माओं को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन ये 4 हेडेड ब्रह्मा, क्योंकि इनका बेसिकली इग्नोरेंस दूर करना था, इसलिए भगवान ने उनको ऐसी विजन दी कि वो बाकी सारे ब्रह्माओं को देख पाए। और तब उन्हें समझ में आया कि एक्चुअली जो मेरा क्रिएशन, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा घमंड कर रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं है भगवान के क्रिएशन के सामने। तो उसी तरीके से हम लोग अपनी स्थिति समझ सकते हैं कि हम लोग छोटा मोटा अगर जमीन और ये सब अगर खरीद लेते हैं तो हम लोग अपने को बहुत ग्रेट सक्सेसफुल इंसान समझने लगते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो इस पृथ्वी का भी पूरा जो वैल्यू है वो एक तिल के दाने या एक मस्टर्ड सीड, जो राई का दाना होता है, उसके बराबर इस पूरे पृथ्वी का भी अभिप्राय नहीं है। और उस पूरे पृथ्वी में जरा जरा सा कुछ एक्वायर करके हम लोगों को लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। जैसे कि चींटियां वगैरह को हम लोग देखते हैं और हम लोग सोचते हैं कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये लोग क्या एक शक्कर का दाना इधर से उधर लेके जा रहे हैं, इनकी जिंदगी क्या है, इनकी बिसात क्या है,
2 दिन की इनकी जिंदगी। तो उसी तरीके से इवन देवी देवता तक हम लोग को उस तरीके से देखते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दीजिए कि ब्रह्मा के तो एक दिन के अंदर ही कितने यहाँ पर युग बदल जाते हैं। तो तो इस तरीके से हम लोग अपनी स्थिति को समझ सकते हैं। और इतना कम समय होने के बावजूद, क्योंकि भगवान की माया देवी के द्वारा कवर्ड होने के वजह से हम लोग को लगता है बहुत लंबा जीवन है, बहुत जीवन अभी जीने को बचा हुआ है। बल्कि हमारे सामने ही हम लोग देखते हैं कि हमारे माता पिता हमारे सामने ही, जब हम लोग छोटे थे हम लोग देखते थे वो कितने यंग थे, आज की डेट में पूरी तरीके से ओल्ड हो चुके हैं, जबकि कोई ऐसा समय नहीं बीता है। और कितने लोगों के माता पिता स्वर्गवासी भी हो चुके होंगे। तो हम लोग समझ सकते हैं कि लाइफ स्पैन बहुत ही कम है। या हम लोग देखते हैं कि ये जल्दी ही अभी हम लोगों ने देखा कि ये एक्टर, इनका देहांत हो गया, इस एक्टर का देहांत हुआ। हम लोग देखते हैं अरे बड़े जल्दी ये लोग मूवीज में आए थे, कितने यंग थे, और 60-70 साल के अंदर ही बुढ़ापा होके, बीमारी होके उनका पूरा जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। तो और कुछ भी उनका फिर उसके बाद नहीं रह जाता। 2-4 दिन लोग बात करते हैं, 2-4 दिन लोग अपना स्टेटस लगाते हैं, फिर उसके बाद ठीक है आया गया हो जाता है, ठीक है अब अगले एक्टर की बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं। तो उसी तरीके से इंसान को लगता है कि हाँ मेरी बहुत वैल्यू है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ नया कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हाँ उसकी एक ही वैल्यू, अगर वो थोड़ी भक्ति करके साइकिल से निकल सके, भगवान के धाम वापस जा सके, तभी उसका कुछ फायदा है। अदरवाइज वो किसी ना किसी रूप में, या तो इंसान बन के या जानवर बन के या फिर लोअर प्लेनेटरी सिस्टम में वो अपना समय माया देवी के द्वारा कवर्ड होकर बिता रहा होगा। तो उससे बचा जा सकता है समझ के कि हम लोग की क्या पोजीशन है इस भौतिक जगत में। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का हम लोगों को समझ में आया। सो हियर इट इज स्टेटेड दैट यस्सै का निस्वासिता कालम अथवलम वयो only just abiding by the breathing period of Mahavishnu there are millions of Brahma they are living। तो अभी हम लोगों ने देखा कि करोड़ों ब्रह्मा है ऐसे, सिर्फ हम लोग के 4 मुख वाले ही ब्रह्मा नहीं है। तो अभी से पहले किसको और पता था कि करोड़ों ब्रह्मा है? आप लोगों में से कोई अनम्यूट करके बताएगा। कितने लोग ये मानते थे कि सिर्फ 4 जो ब्रह्मा होते हैं वो 4 मुखी होते हैं? हरे कृष्णा, कोई भी अनम्यूट करके बताएगा। एक्चुअली अगर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि सब लोग सो तो नहीं गए। हरे कृष्णा। हरे जी कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, मुझे आप ही ने शायद क्लास में एक बार 2 बार पहले रिपीट किया ये सेम कॉन्सेप्ट एंड टोल्ड दिस स्टोरी। यस। तो अभी हम लोग समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मा की इमेज है हम लोगों के सामने की 4 हेड वाले ब्रह्मा है, वो सिर्फ इस मटेरियल वर्ड या जो ये ब्रह्मांड है, बस इसमें ये 4 मुख वाले ब्रह्मा है। और इसी तरीके से बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उसमें अलग अलग मुखों वाले ब्रह्मा हैं। ठीक है। और जो लिविंग एंटिटी एक ब्रह्मांड में फंस जाता है वो उसी ब्रह्मांड में ऊपर नीचे जाता रहता है उस 14 प्लेनेटरी सिस्टम में। वो जनरली वो उस ब्रह्मांड से निकल के अगले ब्रह्मांड में नहीं जाता। इस तरीके से करोड़ों ब्रह्मा है और करोड़ों ब्रह्मांड है, उस सब में लिविंग एंटिटीज से वो भरे पड़े हुए हैं। और फॉर एन ईच ब्रह्मास पीरियड दैट यू हैव रीड इन भगवत गीता, तो हर ब्रह्मा का पीरियड क्या है, उसका एक दिन अगर हम लोग देखें तो 43 lakhs टाइम्स 1000 वो एक दिन के बराबर है। और हम लोग देख सकते हैं कि 4,32,000 साल जो है वो इस कलयुग का समय है। तो एक दिन के अंदर ही उसका हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 युग 4 युग बीत जाते हैं एक दिन के अंदर ही। और जब उनकी रात होती है तो यहाँ युग खत्म हो जाता है। So that is Brahma's 12 hours. Similarly, 24 hours 1 day. Now calculate 1 month. Such 1 year, such 100 years. So that 100 year of Brahma is only a breathing period of Mahavishnu. तो ब्रह्मा के कंपेयर में हम लोग महाविष्णु का पोजीशन देख सकते हैं कि महाविष्णु का जस्ट ब्रीदिंग पीरियड होने पे ही पूरा ब्रह्मा जी के जिनका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा है, जिनका 12 घंटे को भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इतना ज्यादा निकल रहा है। तो उतने समय में ही ब्रीथिंग पीरियड विष्णु की होती है और वो ब्रह्मा खत्म हो जाते हैं। सो आवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज गोइंग ऑन। सो ड्यूरिंग द ब्रीथिंग पीरियड व्हेन ब्रीथिंग इज आउट ऑल दीज ब्रह्मांडास बिकेम क्रिएटेड एंड व्हेन इट इज इनहेल्ड ऑल आर क्लोज्ड, अकाउंट क्लोज। सो दिस इज गोइंग ऑन। सो हम लोग समझ सकते हैं कि विष्णु भगवान के कंपेयर में हम लोग की क्या पोजीशन है, क्या हम लोग की सिचुएशन है, और उसके बावजूद भी हम लोग कितना ज्यादा माया के द्वारा कवर्ड हैं कि हम लोग अपनी पोजीशन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सारा श्री चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला मध्य खंड में बताया, क्योंकि भगवान स्वयं ही चीजों को, चैतन्य महाप्रभु ने ही चीजों को, बहुत सारी चीजों को रिवील किया है। तो ये जो ब्रह्म संहिता भी थी ये पूरी तरीके से विलुप्त हो गई थी।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ही जब उन्होंने दक्षिण में अलग अलग मंदिरों का भ्रमण किया तो एक मंदिर में इसके कुछ चैप्टर्स पाए गए थे, तो उन चैप्टर्स को उन्होंने वापस जो डिवोटीज थे उनके लिए ओपन कर दिया था। तो उन्हीं चैप्टर्स में से ये इंफॉर्मेशन जो है, जो बाकी ब्रह्मा जी का पोजीशन, जिसमें ब्रह्मा जी अपनी पोजीशन और महाविष्णु की पोजीशन बता रहे हैं, वो एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर हम लोग अब लॉर्ड शिवा के बारे में बात करेंगे। तो लॉर्ड शिवा, देयर आर 3 क्वालिटीज इन द मटेरियल वर्ल्ड, जो कि हम लोग जानते हैं कि 3 गुण हैं, एक गुडनेस, एक पैशन और इग्नोरेंस। सो ईच क्वालिटी इज कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ बाय हिज एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट इनकार्नेशन, ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, 3 गुना अवतारा। Now on the 3 qualities, material modes of nature, the heads are Brahma the first living creature, Brahma and Vishnu, Vishnu God himself, and Shiva, Lord Shiva. So Shiva's position is between Brahma and Vishnu. Vishnu is God, Brahma is living entity, so there is a gradation. Living entity, they are also part and parcel of God. Shiva is also part and parcel of God. Vishnu is also part and parcel of God, but there are degrees of power that we have already discussed. Krishna is 10%, that is 100%. Vishnu is 94%, Shiva is 84%, and we living entities, we are 78%. So Triguna Angikari, Kare Shrishti Adi Vyavahar, they have nothing to do with these material modes of nature, just like a person in charge of the criminal department or jail department. But we should not think that he is one of the prisoners because he is in the charge of the jail department. No, similarly, Shiva, Lord Shiva, he is in charge of the mode of ignorance, but he is not ignorant. He is the most enlightened devotee of the Lord. He has got a parampara, disciplic succession, which is called Vishnu Swami Sampradaya. There are 4 sampradayas of great devotees of the Lord, one from Brahma, one from Shiva, one from Lakshmi, and one from 4 Kumaras. So Lord Shiva, although he is in charge of the department of the mode of ignorance, but he is not ignorant. You should not mistake that. सो यहाँ लॉर्ड शिवा के बारे में बताया जा रहा है कि अलग अलग जो मोड्स हैं, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी कि एक गुडनेस, सत्व गुण, पैशन यानी रजोगुण, और इग्नोरेंस यानी तमोगुण, तो इन तीनों को कंट्रोल अलग अलग प्रिसाइडिंग डीटीज करती हैं। तो विष्णु भी हम लोगों को पता है कि कृष्णा के एक्सपेंशन है विष्णु, और कृष्ण और फर्दर उन्हीं के सेकंड एक्सपेंशन है शिवा, और ब्रह्मा उनका जीव तत्व एक्सपेंशन है। तो ब्रह्मा तो अलग अलग, तो भगवान, अगर कृष्ण भगवान की बात करी जाए तो उनके अंदर 64 कलाएं इन फुल होती हैं, यानी पूरे 100% प्रोपोर्शन में। तो कृष्णा 100% है, और उसी 64 कलाओं का अगर हम लोग देखें तो विष्णु की अगर हम लोग बात करते हैं तो विष्णु में 94% वो क्वालिटीज होती हैं, शिवा में 84% वो क्वालिटीज होती हैं, और वी लिविंग एंटिटी वी आर 78% इन माइन्यूट क्वांटिटी। वो 78 कलाएं होती है लेकिन माइन्यूट क्वांटिटी में, और वो भी 78 माइन्यूट क्वालिटी और इन फुल वो भी ब्रह्मा में होती है, यानी हम लोग और भी उसे कम एग्जिबिट कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग कवर्ड इन विद दिस मटेरियल एनर्जी। अगर कोई भी प्योर, पूरी तरीके से प्योरिफाइड होता है यानी प्योर डिवोटी बनता है, तो उसमें फुल 78% वो क्वालिटीज मैनिफेस्ट होती हैं, और वो फुल क्वालिटीज मैनिफेस्ट होने की वजह से वो ही इज, यू कैन अंडरस्टैंड, प्योर डिवोटी quality wise he's on the level of Brahma ji, because Brahma ji is also pure, is a devotee of the Lord, परंतु पूरी तरीके से प्योर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जब वो भौतिक जगत में मोड ऑफ पैशन के द्वारा ड्रिवन होते हैं और ये भौतिक जो जगत है उसको बनाते हैं, तो वो भी माया देवी के कंट्रोल में रहते हैं, बट परंतु शिव जी का स्थान उनसे ऊपर का है। शिव जी का जैसे हम लोग देख रहे हैं, पा रहे हैं कि इज 84%। सो शिव तत्व ऑलमोस्ट एक डिफरेंट तत्व ही है, यानी कि जीव तत्व यानी हम लोग जीवा, तो इसीलिए बोला गया जितने भी जीव हैं वही डेमी गॉड यानी कि देवी देवताओं की पोजीशन भी जीव तत्व ही एक्वायर करता है, यानी कोई भी जीव जो है जिस तरीके से कर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि वो इंद्र भी बन सकता है, परंतु और ब्रह्मा भी बन सकता है, यानी ब्रह्मा है वो भी एक पोस्ट है। अगर कोई मोस्ट क्वालिफाइड होता है तो वो ब्रह्मा बनता है, अगर कोई भी क्वालिफाइड पर्सन नहीं होता उस ब्रह्मांड में जो कि ब्रह्मा का पोजीशन एक्वायर कर सके, तो भगवान ही फर्दर अपने को एक्सपैंड करके ब्रह्मा का पोजीशन को एक्वायर करते हैं। परंतु अगर कोई क्वालिफाइड है, कोई उस तरीके से एक्ट कर रहा है, कोई इतना प्योरिफाइड है, कोई अपनी ड्यूटीज पूरी
प्रॉपरली कई जन्मों से करता चला आ रहा है और उस उतना क्वालिफाइड है, तो फिर भगवान उसको ब्रह्मा की पोजीशन दे देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ब्रह्मा भी एक पोजीशन, लेकिन शिव जी का ऐसा नहीं है कि कोई इंसान शिव जी के लेवल पे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक शिव तत्व है, शिव तत्व को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मिल्क है, तो मिल्क से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, मिल्क से पनीर बनाया जा सकता है, चीज बनाया जा सकता है। तो शास्त्र बताते हैं कि जैसे मिल्क, सेम मिल्क को अगर एसिड से ट्रीट कर दिया जाए, यानी नींबू अगर हम लोग से ट्रीट करते हैं, तो वो दही में बदल जाता है। तो वो जैसे मिल्क अगर विष्णु है तो वो दही शिव जी है। तो दही से वापस मिल्क नहीं बन सकता, लेकिन मिल्क से दही बन सकता है। तो यानी शिव जी इवन दो कहा जा सकता है कि कृष्णा के प्योर डिवोटी हैं, परंतु शिव तत्व एक अलग है। तो जैसे बोला जाता है गोलोक वृंदावन है, उसके नीचे और वैकुंठ लोकाज हैं, फिर उसके नीचे शिव लोका है, और शिव लोकों के नीचे देवी लोक है, फिर उसके नीचे ब्रह्म लोक वगैरह है। और ये जितने भी ब्रह्म लोक वगैरह, ये सारे, ये सब जब सृष्टि का संहार होता है, यानी कि जब इनहेलेशन होता है वापस विष्णु का, तो ये सारे लोग भी खत्म हो जाते हैं उस समय। जब ब्रह्मा जी का खत्म होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड भी खत्म हो जाता है उसके साथ, जितने भी लिविंग एंटिटीज है। महाप्रलय जो होती है, एक प्रलय होती है नॉर्मल और एक महाप्रलय होती है जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है, परंतु ये शिवलोक एज इट इज रहता है। तो सो हम लोग शिव जी को इस तरीके से नहीं देख सकते कि वो इग्नोरेंस, कि वो भी इग्नोरेंस के द्वारा प्रभावित हैं। जैसे कि अगर कोई जेल जाता है, तो जेल में जनरली तो बाकी सब क्रिमिनल होते हैं, लेकिन कोई इंचार्ज भी हो सकता है जेल डिपार्टमेंट का, और जो जेल डिपार्टमेंट का इंचार्ज है वो प्रिजनर से अलग होता है। तो सिमिलरली लॉर्ड शिवा जो है, वो इवन दो ही इज इंचार्ज ऑफ द मोड ऑफ इग्नोरेंस, बट वो खुद इग्नोरेंस में नहीं है। He is the most enlightened devotee of the Lord. He has got a parampara, disciplic succession, which is called Vishnu Swami Sampradaya. तो अगर शिव जी भी इतने पवित्र हैं कि अगर उनका भी कोई प्योरली तरीके से अगर कोई भी भक्ति करता है, तो एटलीस्ट उसको इतना रियलाइजेशन हो जाता है कि ये बॉडी और ये सोल जो है दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। और अगर वो बहुत ही ध्यान पूर्वक अगर वो शिव जी की स्तुति कर रहा है, उसको मटेरियल इच्छाएं, लोअर प्रोपेंसिटीज नहीं है, तो लॉर्ड शिवा इतने मर्सीफुल हैं, इतने दयालु हैं कि वो उसे भगवत भक्ति यानी कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए या विष्णु जी की भक्ति के लिए उस डिवोटी को आगे प्रोग्रेस कर देते हैं। तो तो चार संप्रदाय जो हैं, एक लक्ष्मी जी से निकले हैं, एक शिव जी से निकले हैं, एक ब्रह्मा जी से निकले हैं। हम लोग ये जो जिसमें चैतन्य महाप्रभु फिर से आए, उसे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय बोला जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ था और चैतन्य महाप्रभु के आने की वजह से गौड़िया यानी कि गौर यानी कि चैतन्य महाप्रभु इसमें और जुड़ गए। तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें हम लोग का डिसाइप्लिक सक्सेशन शील प्रभुपाद का वो चला आ रहा है। और उसके अलावा भी और संप्रदाय हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं, जैसे कि लक्ष्मी संप्रदाय, शीश संप्रदाय, जिसमें कि रामानुजाचार्य थे, इसी तरीके से लॉर्ड शिवा का संप्रदाय और विष्णु स्वामी संप्रदाय और फोर कुमार्स का संप्रदाय है। तो अभी हम लोग दुर्गा जी के बारे में बात करते हैं। दुर्गा जी, गणेश जी। प्रभु जी, तो जस्ट एक क्वेश्चन है, बिकॉज ये तो सबसे इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है जो अभी आपने समझाया, एटलीस्ट मेरे लिए। तो जो ये जो परसेंटेज, एंड इट्स सो फैसिनेटिंग के तभी भी मतलब इतना मैथमेटिकली इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। सो जो मुझे समझ आ रहा है, जो ये 78% जो बोल रहे हैं वो हम लोग इनफैक्ट ब्रह्मा हैं जो आपने बताया, तो हम तो उससे भी जो भी नीचे ही हैं, मतलब हाँ, हम लोग उससे भी नीचे, बट हम लोग मैक्सिमम 78% तक हम लोग जा सकते हैं मैक्सिमम। तो ये जीव तत्व जो है वो 78% तक जा सकता है। लेकिन अगर तो सबसे अगर प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए, जैसे अगर मतलब कि अभी जैसे मैथमेटिक्स में बोलते हैं इतना परसेंटेज मिले आपको और डिफरेंट स्टूडेंट्स गेट डिफरेंट परसेंटेजेस, तो अभी जैसे अगर हम सेल्फ को करें असेसमेंट, तो उसके लिए कुछ है कि मतलब हम कहाँ हैं इस वक्त, हम मतलब इंडिविजुअली या इवन एज होल
ह्यूमैनिटी, आई डोंट नो, ऐसा कुछ है क्या? जैसे हम बोलें कि अभी हम 60% हैं और हम ये करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड बिकॉज ये बहुत देखिए इंटरेस्टिंग। मे बी मैं किसी सीनियर डिवोटी से इस बारे में मे बी वो सेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग अगर भक्ति करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं उतना हम लोग को रियलाइज होता चला जाता है। और अगर कोई पूरी तरीके से प्रोग्रेस करता है तो ऑटोमेटिकली उससे लव ऑफ गॉडहेड अचीव हो जाता है। लव ऑफ गॉडहेड मतलब कि वो अपने आप ही, वो नेचुरली ही फिर कृष्ण भगवान को सर्व करने के बारे में ही सोचता है। अपने आप ही वो पूरी तरीके से माया के कलमश से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। तो जब वो पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाता है तब तब उस समय यानी प्योरीफाइड पर्सन जो होता है इस भौतिक जगत में, वो 78% उसकी क्वालिटीज इन फुल मैनिफेस्ट होती हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के केस में था कि पूरी तरीके से फुल स्पिरिचुअल क्वालिटीज मैनिफेस्ट हो रही थी। और उस समय जब ऐसा होता है कि पूरी तरीके से इंसान प्योरीफाइड हो जाता है, तब बहुत सारी चीजें हैं जो जनरली हम लोग के ऐसे विजन से हम लोग नहीं देख पाते। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे देवी देवता हैं हायर प्लेनेटरी सिस्टम्स के, या हायर प्लेनेटरी सिस्टम में बहुत सारे जीव हैं, अलग अलग गंधर्व हैं, या फिर बोलेंगे कि सिद्ध लोकाज वगैरह हैं। तो इन सब जगहों के लिविंग एंटिटीज वगैरह ऐसे जनरली हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे बोला जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कि अगर कोई प्योर डिवोटी बनता है उस लेवल पे वो प्यूरिफाइड होता है, तो एटलीस्ट उसकी विजन जो होती है नॉर्मली जो हम लोग ऐसे मटेरियल विजन होते हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। बिकॉज इट्स ऑल, ये जो विजन भी है ये हम लोग की कॉन्शियसनेस से ड्राइव हो रही है। जिस तरीके से कॉन्शियसनेस एक पर्सन की इवॉल्व होती है तो वो कई सारी वो चीजें देख पाता है जो जनरली हम लोग की मटेरियल आइज के द्वारा कवर्ड होती हैं। तो वो पूरी तरीके से प्योरीफाइड अगर हो जाता है तो फिर ये भौतिक जगत दूसरे तरीके से वो चीजों को देख पाता है। यानी कि अगर कोई हायर प्लेनेटरी सिस्टम के लोग भी हैं तो वो देख सकते हैं। जैसे पहले बोला जाता था ना कि पहले जो भी वो लोग अपने अपने यानों से एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाते थे और पहले के लोग देख पाते थे कि हाँ ये हायर प्लेनेटरी सिस्टम के लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, या गंधर्व लोगों को या बाकी लोगों को। लेकिन अब अभी कोई नहीं देख पाता क्योंकि कॉन्शियसनेस इतनी डाउन है। लेकिन कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है तो लोग देख पाते हैं। कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है तो अभी हम लोग सन को एक प्लेनेट ही मानते हैं और अलग अलग टेलीस्कोप वगैरह लगा के उसमें अलग अलग सेटिंग्स करके हम लोग सन ग्लोब को देखने की कोशिश करते हैं। परंतु हम लोगों को कुछ क्लैरिटी नहीं होती कि कैसा है क्या है सन ग्लोब। लेकिन अगर कोई प्यूरिफाई होता है तो अगर वो सन ग्लोब को भी देखेगा तो उसमें उसको विष्णु भगवान सन ग्लोब के साथ में दिखाई देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जो अगर कोई इंसान प्रोग्रेस करेगा तो वो खुद ही देख पाएगा। परंतु हाँ, थोड़ा भी प्रोग्रेस करेगा तो एटलीस्ट इतना देख पाएगा कि किस तरीके से एवरीवन इज कवर्ड इन इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। किस तरीके से हर कोई भगवान की जो इल्यूजरी एनर्जी है उसके द्वारा कवर है। और कितना भी जब तक वो रियल में भक्ति नहीं करता उसको जितना भी समझा लो वो इस चीज को नहीं समझ सकता। तो वो थोड़ी बहुत चीजें हम लोग नहीं, just in the interest of time we can continue, I think. Thank you. So actually रणछोड़ प्रभु जी जैसे अभी डेली वो थोड़ा श्रीमद् भागवतम का सेशन ले भी रहे हैं जिसमें अलग अलग ग्रहों के बारे में रियल में कैसे किस तरीके से पृथ्वी लोक की संरचना है। तो जैसा हम लोग को दिखता है ना वैसा कुछ नहीं है। जैसे जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और ये इसमें लोग हैं या ये सिटीज हैं ये कॉन्टिनेंट्स हैं, उससे भी बहुत चीजें ज्यादा हैं जो कि हम लोग को श्रीमद् भागवतम वगैरह के थ्रू मिलती है। लेकिन जिस तरीके से एक बैल होता है, बैल के बीच में एक लठ लगा होता है ना और रस्सी से वो बंधा रहता है तो वो सिर्फ उतना ही सर्कल ले पाता है। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वैसे ही और भी फोर्सेस हैं जो एक्ट करते हैं। तो अगर कोई एरोप्लेन उड़ा के जाए भी पूरा चक्कर भी लगाता हुआ तो भी वो पृथ्वी का एक सर्टेन एरिया ही है, उतने तक ही वो कवर हो सकता है। तो जिस तरीके से बैल रस्सी से बंधा होता है तो वो उसी गोले तक के अंदर घूम सकता है, वो उस गोले को तोड़ के और बाहर निकल के नहीं घूम सकता। उस तरीके से हम लोग का सबका सिचुएशन होता है कि भगवान ने जैसा बनाया हुआ है कि इतना ही पोर्शन एक इंसान कवर कर सकता है। बट मे बी ब्रह्मांड में उससे भी ज्यादा चीजें हैं
जो कि इंसान नहीं देख पाता जनरली। लेकिन श्रीमद् भागवतम वगैरह जो कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा लिखी गई, जो पूरी तरीके से लिबरेटेड थे, तो उन्होंने और चीजें भी बताई हैं कि और भी इस ब्रह्मांड में और भी क्या क्या चीजें हैं जो ऐसे हम लोग को जनरली मटेरियल विजन से हम लोग को नहीं दिखती, क्योंकि पूरी तरीके से हम लोग भगवान की कंट्रोल में होते हैं, मटेरियल एनर्जी के कंट्रोल में होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण से कोई भी चीज उछालो तो वो नीचे ही गिरती है, वैसे ही अगर कितना भी हम लोग प्रयत्न कर लें, बस वो जैसे लट से बंधा हुआ बैल घूमता, हम लोग भी सिर्फ उतना ही घूम के उतना ही पृथ्वी के हिस्से को हम लोग समझ सकते हैं। तो अभी रणछोड़ प्रभु जी ने इस पे काफी रिसर्च किया था, तो वो क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं हर एवरीडे इवनिंग में। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप वो स्काइप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा और भी उसमें डीप इनसाइट मिलेगा अगर आपके पास टाइम रहेगा तो, या किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वो मुझे बता सकता है, तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने अभी एक ही सेशन कवर किया, तो अभी पूरा वो डिटेल्ड में किस तरीके से सारे प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, किस तरीके से वो सब गवर्न हो रहे हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार है, वो कवर करेंगे। ठीक है, तो दुर्गा जी के विषय में बात करते हैं। ब्रह्म संहिता इट इज सेड सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिर एक छाये व यश भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। सो दुर्गा शक्ति और एक्सटर्नल एनर्जी। दुर्गा मीन्स द सुपरिटेंडेंट ऑफ द फोर्ट। जैसे कि पहले भी मैंने बताई है कि दुर्ग मीन्स जेल एंड Durga means superintendent of the jail. So Durga means fort where you cannot get out or cannot enter very easily. This is called Durga. So Durgamana. So similarly जैसे प्रभु जी आप पूछ रहे थे कि अगर कोई पूरे तरीके से, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे खुद भी देख सकते हैं, जो पूरी तरीके से लिबरेटेड सोल होते हैं वो इवन सन ग्लोब में सन डेमीगॉड को भी यानी सूर्य देव वगैरह को भी देख सकते हैं। तो यानी कि उनको फिर ये जो शास्त्र प्रमाण है, जो हम लोग शास्त्र पढ़ के चीजों को समझ रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं रह जाती। अगर कोई पूरी तरीके से प्योरीफाई होता है चैंटिंग के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो वो जो भी चीजें शास्त्रों में लिखी हैं वो उसके विजन से वो देख सकता है। तो इस तरीके से वो देख सकता है कि अगर वो रियल में प्योरीफाई हुआ है कि नहीं। तो यानी कोई भी ऐसे क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ मैं तो अब 78% एकदम प्योरीफाइड हूँ। अगर वो 78% प्योरीफाइड है तो वो पूरे ब्रह्मांड को वो दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से देख सकता है, जो कि जनरली जब तक वो प्योरीफाई नहीं है वो नहीं देख पाएगा। तब तक उसको सन मतलब एक ग्रह जैसा, या जैसे भी साइंटिस्ट बताएंगे वो उसी को एक्सेप्ट कर लेगा। परंतु अगर कोई एलिवेटेड कॉन्शियसनेस होगी तो वो देख पाएगा कि हाँ देयर इज ए सन डेमीगॉड एज वेल। तो जो चीजें हम लोग को सुनने में बड़ी आश्चर्यजनक लगती हैं, या हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये सब तो माइथोलॉजी है, ये सब तो कुछ भी कहानी बना दी है, क्योंकि जनरली हम लोग सोचते हैं अरे साइंस ही सब कुछ है, साइंस ग्रहों के बारे में ऐसे बता रहा तो ऐसा ही कुछ होगा, सूर्य के बारे में ऐसे, और हमारा जो स्क्रिप्चर है वो बोलते हैं कि सूर्य देव होते हैं, तो हम कैसे उसे एक्सेप्ट करें। तो बात यह है कि हम सब लोग की विजन कवर्ड है पूरी तरीके से, हम लोग उतना ही देख सकते हैं जितना कि भगवान अलाउ करते हैं। तो उससे ज्यादा वही इंसान देख सकता है जो माया देवी के इन्फ्लुएंस से ऊपर है। सो इन द ब्रह्म संहिता इट इज सेड, तो उसमें बताया है दुर्गा जी के बारे में। दुर्गा मीन्स द सुपरिटेंडेंट ऑफ द फोर्ट। दुर्गा मीन्स फोर्ट वेयर यू कैन नॉट गेट आउट और कैन नॉट इंटर वेरी इजिली, दिस इज कॉल्ड दुर्गा। तो इस भौतिक जगत में घुसना भी बहुत मुश्किल है, और अगर घुस गए तो निकलना भी उतना ही मुश्किल है। दिस इज कॉल्ड दुर्गा, दुर्गमना। So Durga means the superintendent deity of this material world. So she is very powerful. Durga, how much powerful? Srishti, Sthiti, Pralaya, Sadhana, Shakti. She can create, she can maintain, and she can destroy the whole material energy. Whole material cosmic manifestation. She is so powerful. Srishti, Sthiti, Pralaya, Sadhana, Shaktir, Eka Chayeva. Still she is working not independently. Chayeva just like Shaya or reflection or shadow, not independently. The material scientists who think that the material energy is working independently, they are mistaken. Material energy cannot work independently. We have got experience. However gorgeous a machine may be, unless there is a touch of the spirit soul, the machine cannot work. Similarly, the big machine, cosmic manifestation, everything is going on very nicely, but it is being worked out by the plan of Krishna. That is stated by Krishna himself. Madhyakshena prakriti suyate sa characharam. And similarly, it is confirmed by Brahma, Srati, Shrishti, Sthiti, Pralayas, Sadhana Shaktir, Eka Chayeva, Yashya Bhuvanani, Bibharti Durga. Yasya hi Srishti, Sthiti, Pralaya, Sadhana Shaktir, Eka Chayeva, Yasya Bhuvani, Bibharti Durga, Ikshana Rupam, Api Yasya Cha Cheshtate Sa Durga, Yas Ishana Rupam, Api Chestata. So now not independent. As the supreme personality of Godhead desires, she work.
तो तो जो भी तो हम लोग ये सब जानते हैं कि अगर कोई भी मशीन है, कोई कितनी भी सोफिस्टिकेटेड मशीन है, उसके पीछे कोई ना कोई ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा होता है। अगर हम लोग कोई बोले कि रोबोट, अगर हम लोग उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाल दें और कोई बोले कि नहीं ये अपने आप ही काम कर रहा होगा, तो हमें पता है कि उसको किसी ना किसी ने बनाया होगा, किसी ना किसी ने उसके लिए कोड लिखा होगा, कोई ना कोई के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो चीजें चल रही होंगी। एरोप्लेन है, वो अगर हवा में उड़ रहा है, अपने आप नहीं उड़ रहा, अंदर कोई पायलट बैठा है। कोई कार चल रही है, उसमें भी कोई बैठा हुआ है। कोई क्रेन है, उसको भी कोई कहीं ना कहीं से गाइड कर रहा है, मे बी अंदर बैठा है, नहीं तो रिमोट कंट्रोल के द्वारा उसे गाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई इंटेलिजेंस उसमें अप्लाई हो रहा होता है, कोई भी चीज अपने आप काम नहीं कर रही होती है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि प्रकृति में सब कुछ अपने आप हो रहा है, बगैर किसी डायरेक्शन के चीजें अपने आप काम कर रही हैं, अपने आप ही ऋतु आ रहे हैं, ऋतु बार बार वही चारों चारों बदलते हैं, बारिश की ऋतु आती है, गर्मी होती है, इस सब तरीके से चीजें बदलती रहती हैं। तो कोई ये सोच सकता है कि अपने आप ही सब कुछ चल रहा है। सूर्य डेली एक समय पे ही निकलता है, एक ही समय, और ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में चला जाता है, और डेली निकल रहा है। तो ये सारी चीजें अगर कोई सोचे कि अपने आप एक्ट कर रही है, तो वो गलत है। तो भगवान यहाँ पर ब्रह्म संहिता में बताया गया कि ये कि प्रकृति जो है, यानी मटेरियल एनर्जी, यानी दुर्गा देवी भगवान की छाया की तरीके से काम करती है, यानी भगवान का जो रिफ्लेक्शन है। तो भगवान का कोई अगर इंसान है, तो उसकी छाया जहां जहां वो इंसान जाएगा, वहां वहां मूव करेगी। तो छाया पूरी तरीके से इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो उसी तरीके से दुर्गा देवी, क्योंकि भगवान की छाया शक्ति है, वो भी पूरी तरीके से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ छाया भगवान को इसलिए बताया गया क्योंकि जब डिवोटीज ने जब भी भगवान का पूरा दर्शन किया है, तो उन्होंने हमेशा माया देवी को भगवान के पीछे पाया है। तो दुर्गा देवी अगर कोई, तो इसी से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर दुर्गा देवी से बचना है, यानी रियल में जो भगवान का जो इल्यूजरी एनर्जी है, जो माया देवी जो पूरी तरीके से इंसान को गवर्न की रहती है, और बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज से इंसान फंसा रहता है। वो क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। और मैक्सिमम ज्यादा अपनी इंद्रियों के द्वारा वो परेशान होके, यानी कि अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होके ही उसका पूरा, अगर देखा जाए तो जनरली उसका भौतिक जीवन उसी से शुरू होता है, उसी पे खत्म हो जाता है, फिर अगला जन्म में भी उसी से शुरू होता है, उसी पे खत्म हो जाता है। तो उस अट्रैक्शन से इंसान ऐसे नहीं निकल पाता। तो भगवान की छाया शक्ति कहने का अभिप्राय ये भी है कि जहां सूर्य होता है, वहां पर अंधकार नहीं होता, या वहां अगर पूरी तरीके से लाइट हो, तो अगर परछाई पे लाइट लाइट डाल दी जाए, तो परछाई नहीं दिखेगी। तो उसी तरीके से भगवान के बैक साइड पे माया देवी होती है। अगर कोई अपनी लाइफ में कृष्णा को हमेशा फ्रंट में रखे, तो कभी भी वो माया देवी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, यानी दुर्गा देवी उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो भी बुरे कार्य इंसान करता है, वो भगवान से बच के या भगवान से छुप के करता है। तो हरे कृष्णा। आई वुड रिक्वेस्ट जो भी म्यूट करना हो। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई ये चाहता है कि मुझे माया देवी के इन्फ्लुएंस से हटना है, तो वो कृष्णा को हमेशा अपने सामने रख सकता है। बहुत ही आसान तरीका भी है, जैसे अगर हरे कृष्ण महामंत्र अगर प्ले हो रहा है और उस पर वो ध्यान लगा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो गलत कार्यों को नहीं करेगा, गलत कार्यों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। या फिर वो चैंटिंग कर रहा है, अगर वो प्रॉपरली अपनी सुबह मंगल आरती प्रॉपरली चैंट कर रहा है, बाद में वो अगर ऑफिशियल काम भी करता है और अगर कृष्णा उसके बैक ऑफ द माइंड में है, तो गलत कार्य नहीं करेगा। जहां पर वो गलत कार्य करता है, वो वहां कृष्णा से छुपता है। हालांकि भगवान से छुपता कुछ भी नहीं, भगवान हृदय में विराजमान है, भगवान हर जगह विराजमान है। तो वो कहीं पर भी चला जाए, भगवान, गॉड इज बिटवीन एटम्स एंड स्पेसेस बिटवीन एटम, तो भगवान से छुप कहीं पर भी नहीं सकता है। परंतु फिर भी वो छुप के, यानी भगवान को इग्नोर करके गलत कार्यों में लिप्त होता है। तो अगर वो भगवान को हमेशा फ्रंट में रखे, यानी भगवान की भक्ति को फ्रंट में रखे, भगवान के होली नेम्स को फ्रंट में रखे, तो अपने आप ही वो गलत कार्यों में नहीं जाएगा। और अगर वो हमेशा ही भगवान को फ्रंट में रखेगा, तो ही कैन कम आउट ऑफ द इल्यूजन एज वेल। तो फिर माया देवी का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं होगा। वो एटलीस्ट वो समझ पाएगा कि किस तरीके से माया देवी और सबको इन्फ्लुएंस कर रही है, परंतु उसकी भक्ति के द्वारा वो खुद नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है वो। और फिर अगर उसी तरीके से वो भक्ति में लगा रहेगा, तो धीरे धीरे वो बेसर टेंडेंसीज, जो लोअर टेंडेंसी, जो हैबिचुअल टेंडेंसीज, जो क्योंकि इतने समों से, करोड़ों जन्मों से वो भौतिक जीवन में आ रहा है, वही चीजें कर रहा है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, तो उसके अकस्टम्ड हो गया है। उसे पता है चीजें गलत हैं, तब भी वो उसी में बार बार लिप्त होता है। लेकिन भक्ति के द्वारा पहले तो वो समझ पाएगा कि हाँ, ये सब जो अट्रैक्शन है उससे ऊपर उठा जा सकता है, और फिर वो
अगर वो भक्ति में टिका रहेगा तो ऑटोमेटिकली इन सब चीजों से वो फ्री भी हो जाएगा। तो दुर्गा देवी भगवान के, तो दुर्गा देवी को भी एक थैंकलेस जॉब मिला हुआ है कि वो इस भौतिक जगत में देखती रहती है कि कौन जीव है जो कि जिसको कि मुझे यहीं रखना है। तो भगवान के इंस्ट्रक्शन के द्वारा, जैसे जेल में कैदियों को रखा जाता है और उनको बिल्कुल निकलने की आजादी नहीं दी जाती है, लेकिन जो जेल का सुपरिटेंडेंट होता है वो देखता है कि कौन रियल में रिफॉर्म हो रहा है कैदी, तो मैं भी उसको मैं रिलीज कर दूं। तो उसी तरीके से माया देवी भी देखती रहती है कि रियल में कौन प्योर डिवोशनल सर्विस कर रहा है, उसी को रियलाइजेशन होता, वही निकल के जाता। उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने को बहुत बड़ा साधु परमात्मा दिखा रहे हो, बहुत बड़े साधु संत दिख रहे हो, लेकिन माया देवी सब कुछ जानती है कि रियल में ये भगवान का डिवोटी है, पर रियल में भगवान की भक्ति करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स इकट्ठा कर रहा है, अपनी फिलॉसफी के द्वारा भगवान से अपने को बराबर समझाने की कोशिश कर रहा है, या भगवान का जो ऑथराइज्ड टीचिंग्स है उससे गलत जा रहा है। तो ऐसे लोगों को कभी भी, वो लोग भले जितना भी बोले कि हाँ वो खुद ही भगवान है या वो बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं या बहुत बड़े संत महात्मा है, लेकिन वो पूरी तरीके से भगवान की माया देवी के कंट्रोल में होते हैं। और इसीलिए ऐसे गॉडमैन्स या ऐसे इनकारनेशन ऑफ गॉड हमेशा हम लोग न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि भले वो लोगों को भक्ति की बातें बताते हैं, लेकिन खुद वो अलग अलग रैकेट्स में पकड़े जाते हैं। भले वो आसाराम बापू की बात करें या फिर कोई भी इस तरीके के गॉडमैन वगैरह की बात करें जो एक समय में बहुत इन्फ्लुएंशियल रहे होंगे, परंतु माया देवी को सब पता रहता है, तो वो समझ जाती है ये चीटर है, और माया देवी उसे ही चीट कर जाती है और उसका जो सच होता है वो सबके सामने आ जाता है। तो इस तरीके से माया देवी को, और अगर नहीं भी आया लोग उसको तब भी मानते रहे, लेकिन तब भी वो इसी भौतिक जगत में इसी साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ वगैरह में जाता रहता है। भले लोगों के सामने उसका सच्चाई नहीं भी सामने आई, जो कि इंटेलिजेंट लोगों को समझ में आ जाता है। जो लोग भगवान को बहुत ही छोटा समझ लेते हैं वो जरा जरा से लोगों के चमत्कारों से इन्फ्लुएंस होकर सोच लेते हैं कि ये चमत्कार दिखा रहा तो यही भगवान होगा। जो भगवान की रियल ग्लोरीज को नहीं जानता वो इन्फ्लुएंस हो भी सकता है, परंतु वो खुद भी नरक में जाते हैं और उनके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो सब भी नरक में ही चले जाते हैं। तो तो ये दुर्गा जी का इसलिए थैंकलेस जॉब है कि सबको इस भौतिक जगत में जो भी रियल में प्योरीफाइड नहीं है उसको किसी ना किसी तरीके से अटैच रख के यहीं पर बनाए रखना। वो फिर अलग अलग चीजों में, पॉलिटिकल चीजों में, सोशियो पॉलिटिकल डिस्कशंस में, अलग अलग न्यूज वगैरह में, इसी सब में फंसा रह के वो इसी भौतिक जगत में अपना समय बर्बाद करके अलग योनियों के लिए चला जाता है। अलग अलग बीमारियां भौतिक जगत में बनी हुई है, क्योंकि माया देवी भी देखती है कि अरे इसको मैंने इंसान का जन्म दिया लेकिन ये प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहा, तो इसके मृत्यु का समय आ गया है। अब मैं अगला, ये जो जानवर योनि में था इसको मैं इस बार अपॉर्चुनिटी दूंगी, इसको इंसान का रूप दूंगी और मैं देखती हूँ कि ये भक्ति करने का प्रयास करता है कि नहीं। इस तरीके से यहाँ पर अदला बदली होती रहती है, लोगों की ड्रेस बदलती रहती है। जो इंसान होता है वो जानवर बनता रहता है, बन जाता है, या जानवर इंसान बनता है, या कोई इंसान थोड़ी भक्ति करने की कोशिश करता है, तो माया देवी और चांस देती है कि मृत्यु के बाद फिर से एटलीस्ट इंसान का जन्म उसको मिलता ही है। इसलिए भगवान ने बोला ये कि अगर कोई मेरी भक्ति करता है तो फिर वो मेरे पास आता है। अगर वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं भी कर पाता है लेकिन सिंसियरली डिजायर करता है तो बार बार उसको मनुष्य का जन्म मिलता है, और जहां तक उसने भक्ति करी रहती है उससे आगे उसको भक्ति करके भगवान के पास वापस जाने का मौका मिलता है। तो लास्ट है गणेश जी के बारे में। सो फॉर वर्शिपिंग गणेश इज कंसर्न, दैट इज नॉट नेसेसरी, नॉट दैट इट शुड बी डन ऑन ए रेगुलर बेसिस। इफ यू लाइक यू कैन प्रे टू गणपति फॉर रिमूविंग ऑल द इम्पेडिमेंट on the path of Krishna consciousness, that you can do if you like. तो गणेश जी जो होते हैं उनके बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि अपनी जो उनका एलिफेंट हेड है, तो उसमें जो उनके टीथ्स हैं उसके ऊपर वो भगवान के चरणों को स्थापित करते हैं। जिस तरीके से शिव जी जो होते हैं वो भगवान के चरणों से निकले हुए गंगा जल को अपने जटाओं पे धारण करते हैं और भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। भगवान को वो भी बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए भगवान की खुशी के लिए वो जब समुद्र से विष भी निकला था तो उस विष को पूरी तरीके से पी गए थे, समुद्र के बराबर विष को। लेकिन कोई भी इंसान उनको अपनी तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अरे हम तो शिव जी को फॉलो करते हैं तो इसलिए हम लोग चरस गांजा पीते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम शराब पीते हैं, क्योंकि शिव जी भी कुछ ऐसा भांग खाते थे या कुछ। एक्चुअल में क्या था कि शिव जी पूरा का पूरा विष खाली वो हृदय में धारण कर लिए थे। और अगर इंसान वैसा विष यानी शराब के रूप में या कोई भी ड्रग्स के रूप में वो विष को लेता है तो थोड़ा ही विष के
कारण ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो कोई भी इन महाजनों को यानी भगवान के प्योर डिवोटीज को या ये सब जो पावरफुल एंटिटीज हैं उन्हें इमिटेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो उसी तरीके से गणेश जी भी हमेशा भगवान के चरणों को अपने मस्तक पे स्थापित करते हैं, और इसीलिए हम लोग को पता भी है कि जितने भी शास्त्र हैं उन्हें व्यासदेव जब लिखना चाहते थे तो ब्रह्मदेव ने तो गणेश जी ने उनको लिखने का कार्य किया था। इस तरीके से भगवान की सेवा करी थी। अपने एक दांत को तोड़कर उन्होंने ये सारे ग्रंथों को लिखा था, श्रीमद् भागवतम और जितने भी व्यासदेव जी ने ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो लेकिन हम लोग के लिए गणपति जी की पूजा करना कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि गणेश जी भी जो अपनी शक्ति है कि किसी के भी मार्ग से विघ्नों को हटाने की, वो नरसिंह देव से प्राप्त करते हैं। नरसिंह देव कृष्ण भगवान की एक्सपेंशन है। नरसिंह देव जो कि हम लोग जानते हैं विष्णु जी फॉर्म ऑफ विष्णु। तो हम लोग डायरेक्टली, इसलिए डिवोटीज जो होते हैं वो डायरेक्टली नरसिंह देव को ही प्रे करते हैं रेदर देन इन इनडायरेक्ट वे। तो प्रभुपाद ने ऐसे एक लेटर में मजाक में लिखा भी है कि भगवत गीता में भगवान खुद ही बता रहे हैं कि सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यास्मि मा शुचा। सो व्हाई यू वांट टू वर्शिप समवन एल्स। तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि सारे धर्मों को त्याग दो, कोई भी और तुम किसी भी तरीके की पूजा पाठ कर रहे हो सबको तुम त्याग करके सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, और मैं तुम्हें पूरी तरीके से सब पापों से मुक्त करके तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। सो कृष्णा जब स्वयं ही रिकमेंड कर रहे हैं माम एकम ही अलोन, देयरफॉर वी मस्ट डू लाइक दैट। तो हम लोग को जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं वो करना का कोशिश करनी चाहिए। जैसे अर्जुन को उन्होंने बोला कि तुम फाइट करो और तुम कुछ मत सोचो कि क्या कर रहे हो, तो उसी तरीके से भगवान का अगर कोई भी ऑर्डर आंख बंद करके भी फॉलो करता है कृष्ण भगवान का, तो वही बेस्ट काम कर रहा है। क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि लगा के अपने इंटेलिजेंस से अगर हम लोग चीजों को देख रहे हैं तो हम लोग चीजों को पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ वन वांट्स टू वाटर द ट्री ही waters the root. There is no necessity of watering the branches. The demigods are all different parts of the universal form of Supreme Lord, but Krishna is even more than that, the whole complete universal form. He is the origin of that universal form. Therefore, I do not encourage you to worship this demigod Ganesha. It is not required. It is not necessary. Simply worship Krishna. Perform nice devotion services to Krishna. Then your lives will certainly become perfect. Of course. तो उन्होंने बोला कि अगर सिर्फ कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं तो that is enough. तो आगे उन्होंने मजाक में कहा, of course, if one got some sentiment for achieving the blessing of Ganesha, for accumulating large sum of money to serve Krishna, then he may perform this Ganesha worship privately, not making a public show. But first of all, he give me 1 lakh pound per month, not a single farthing less. If he can supply this amount 1 lakh per month, then he will be allowed to do this Ganesh Puja. Otherwise, he should not do it. It will not be good. That is my order. So all of you keep yourself strong in Krishna consciousness by following all of my basic principles. That is the utmost important. Do not fail to chant 16 rounds daily. Rise early. Come to Mangal Aarti. Come to classes. Follow the 4 regulative principles. In this way, your life will be free from all anxiety. Please try to distribute my books in huge quantities, more and more. This is very satisfying to me. So श्रील प्रभुपाद ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनरली अगर डेमिगॉड वर्शिप कोई करता है तो डेमिगॉड वर्शिप करते समय कई बार होता है कि इंसान भौतिक इच्छाओं की कामना कर लेता है कि मुझे थोड़ा और पैसा मिल जाए, मुझे थोड़ा और कंफर्ट मिल जाए। मे बी जैसे लोग दुर्गा देवी या किसी भी डेमिगॉड को प्रे करते हैं तो यही बोलते हैं कि बुद्धि देहम, धनम देहम, सुंदरी भार्या देहम, यानी कि कोई ना कोई मटेरियल डिमांड्स भगवान के सामने रख रहे होते हैं। तो अगर कोई कृष्ण भगवान को छोड़ के कोई भी डेमिगॉड की वर्शिप करने जाता है, जनरली उसका हार्ट प्यूरिफाई नहीं होगा, क्योंकि हार्ट प्यूरिफिकेशन सिर्फ कृष्ण भगवान की भक्ति करके हो सकता है। तो हार्ट प्यूरिफाई नहीं होगा तो बहुत चांसेस है कि वो कुछ ना कुछ मटेरियल डिजायर्स करके अपना जो यहाँ का जीवन है वो और इलोंगेट कर लेगा। यानी इस जन्म में वो कृष्णा की भक्ति करके वापस जा सकता होगा तो किसी ना किसी डेमिगॉड की वर्शिप करके कुछ ना कुछ टेम्परेरी चीजें मांग के हो सकता है कि उस भौतिक जगत में फंसा रह जाए। तो इसलिए प्रभुपाद उसे डिस्करेज करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर तुम भगवान के लिए, पैसे के लिए कि भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस और पुश हो जाए, उसके लिए भी तुम अगर गणेश जी की पूजा कर रहे हो तो मत करो। तो उसको डिस्करेज करने के लिए वो बोल रहे हैं कि अगर ठीक है तुम्हें करनी है तो फिर $1 लाख तुम फिर डेली दो कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए, देन फिर करो। तो कहने का अर्थ है एक्चुअली इवन गणेश जी या कोई भी डेमिगॉड हो, वो सारे लोग भी आशीर्वाद जो है वो कृष्ण भगवान से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान से अगर हम लोग डायरेक्टली प्रे करते हैं तो कृष्ण भगवान देखते हैं कि किस चीज के द्वारा हम लोग की भक्ति में उन्नति होगी और किस वजह से हमारी भक्ति हो सकता है ना हो, या हम लोग कई बार कोई गलत चीज हम लोग भगवान से प्रे कर रहे हो
और जिसका मिल जाना हमारे लिए और गलत भी हो सकता है। तो हम लोग हो सकता है कुछ गलत डिमांड करें, लेकिन अगर कृष्ण भगवान से डायरेक्ट करेंगे तो वो वैसा करेंगे जो हमारे लिए सही है। लेकिन अगर हम लोग डेमीगॉड्स वगैरह से करेंगे तो वो जनरली इंटेलिजेंस नहीं लगाते हैं, तो अगर हमारे लिए गलत भी होगा तो हमें दे देंगे। अगर कोई हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं हमारी तो इसी से हमारा विवाह होना चाहिए और हम डेमीगॉड से प्रे करेंगे तो हो सकता है हो भी जाए, और जो हो सकता है हमारे लिए बहुत गलत हो, फिर हम पूरी लाइफ सफर करते रहें। लेकिन कृष्णा से प्रे करेंगे, कृष्णा देखेंगे हाँ अगर इससे विवाह होता है तो ठीक है कि भक्ति में आगे प्रोग्रेस कर पाएगा, नहीं उसके अकॉर्डिंग वो उसको देंगे। तो इसलिए बेटर ये होता है कि अगर कुछ भी प्रे करना है तो पहली चीज तो फोर्सफुली भगवान को प्रे ना करें, भगवान से ये बोले कि मेरी ऐसी इच्छा है लेकिन मुझे पता नहीं मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। और भगवान हम लोग ठीक है, हम लोग ने अभी इतना हम लोग रियलाइज नहीं हो कि हम लोग भगवान को देख सकें, भगवान के साथ डायरेक्ट आदान प्रदान कर सकें, लेकिन भगवान के शब्द ही काफी हैं। शब्दों के द्वारा जैसे भगवान बता रहे हैं जो भी मेरी भक्ति करता है उसे मैं वो प्रोवाइड करता हूँ, जो उसके पास नहीं है वो प्रोटेक्ट करता हूँ जो उसके पास है। तो हम लोग पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं भगवान के स्टेटमेंट्स में। भगवान ने बोला है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो यानी कि अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसका कभी विनाश नहीं होगा, उसका कभी वो पूरी तरीके से लॉस्ट कभी नहीं हो जाएगा। अगर वो थोड़ी भक्ति करके उसका जीवन या अंत भी हो जाता है तो फिर से उसे भक्ति का चांस मिलेगा किसी ना किसी रूप में। तो तो इसीलिए हर सिचुएशन में हम लोग कृष्ण भगवान की आराधना करें, वही बेस्ट होता है। तो उसी से धीरे धीरे हम लोग का हार्ट प्यूरिफाई होगा, हम लोग इल्यूजन से ऊपर आके चीजों को सही तरीके से देख पाएंगे और तब कार्य कर पाएंगे। तो कोई प्रीचिंग इज द एसेंस पढ़ सकता? हरे कृष्ण। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है? कोई प्रीचिंग इज द एसेंस रीड कर सकता? हरे कृष्णा। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, कैन हियर। Yes, Prabhuji, we are able to hear. तो कोई ये रीड करने का ट्राई कर सकता? Yes, Prabhuji. Preaching is the essence. Devotees out of compassion are kind to the ignorant mass of people and therefore preach and are blessed by the demigods. Pure devotees out of compassion for the fallen souls are Kripalu, very kind to people in general. They distribute this Bhagavata knowledge all over the world. A kind-hearted devotee is called Deenanatha, protector of the poor, ignorant mass of people. Lord Krishna is also known as Deenanatha or Deenabandhu, the master or actual friend of the poor living entities. And his pure devotee also takes the same position of Deenanatha. The Deenanathas are devotees of Lord Krishna who preach the path of devotional service, become favorites of the demigod. The demigods are actually Automatically are automatically pleased with him and pleased offer with all him and blessings offer within all their- the blessings within their capacity. Srimad Bhagavatam, 4th canto, 12th chapter, 51 text. सो बताया कि अगर रियल में अगर हम लोग चाहते हैं कि देवी देवता खुश हों, जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं अरे हम लोग देवी देवताओं को डेमीगॉड बोल रहे हैं, हम लोग उन्हें ऑफेंड कर रहे हैं, तो अगर रियल में हम लोग को चाहिए कि हाँ देवी देवता हम लोगों से प्रसन्न नहीं हो, तो बेस्ट चीज जो हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग प्रीच कर सकते हैं। यानी कि ये जो मैसेज हम लोगों को मिल रहा है हम लोग और लोगों को भी ये दे सकते हैं, क्योंकि यही बेस्ट चीज है जो किसी भी सोल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अनंत हम लोग ने देखा है कि ब्रह्मा का कितना लाइफ स्पैन है और उस लाइफ स्पैन में भी किसी लिविंग एंटिटी का उद्धार नहीं होता, यानी कि वो बैक होम बैक टू ऑर्डर उस लाइफ टाइम में भी जाए ये जरूरी नहीं है। यानी कि बार बार ब्रह्मा क्रिएट होते हैं, बार बार डिस्ट्रॉय होते हैं, बार बार क्रिएट होते हैं, लेकिन अगर लिविंग एंटिटी जब तक कि वो खुद भक्ति नहीं करेगा वो इस साइकिल से या इस ब्रह्मांड से नहीं निकल सकता है। तो इसीलिए बेस्ट चीज अगर हम लोग किसी को दे सकते हैं तो कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज ही हम लोग उसे दे सकते हैं। और अगर कोई भी कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज किसी को देता है तो देवी देवता भी उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और जो भी आशीर्वाद उनके पूरे कंट्रोल में होता है वो उसे प्रदान करते हैं। तो इसलिए अगर हम सब लोगों को सारे देवी देवताओं की भी ब्लेसिंग्स चाहिए तो थोड़ा अगर हम लोग के पास कुछ भी समय होता है तो हम लोग दूसरों को भी ये ज्ञान दें जो लोग भी फेवरेबल हों, क्योंकि अगर कोई फेवरेबल नहीं है भगवान के प्रति, किसी के मन में रिस्पेक्ट नहीं है, तो माया देवी उसको कभी नहीं छोड़ेगी, मतलब माया देवी उसको इसी साइकिल में घुमाती रहेगी। तो ऐसे लोग जो कि भगवान के प्रति जो भगवान के साथ द्वेष रखते हैं वो कभी इस ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कोई फेवरेबल है जो वैसे भी भगवान के प्रति जिसकी निष्ठा है उसको हम लोग अगर ये ज्ञान दें तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकता है। तो अगर ऐसा कोई करेगा तो सारे देवी देवताओं का भी आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा। अगर कोई किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है।
हरे कृष्णा। किसी का भी कोई सवाल है? और मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्चुअली आप लोग में से कई लोग के कई कई सारे लॉगिन हैं, तो मे बी नेक्स्ट सेशन के बाद से वैसे भी मेरा जो मॉर्निंग इंग्लिश वाला जो सेशन हो रहा है वो ओवर हो जाएगा। तो उसके बाद आई थिंक फिर, क्योंकि अभी जो स्काइप ग्रुप है उसमें 50 पार्टिसिपेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसके ऊपर कोई भी होता है तो मुझे किसी ना किसी को, जिसके मुझे लगता है मल्टीपल बहुत सारे आईडीज हैं, उनको मुझे किसी को हटाना पड़ता है, तो उसके बाद ही वो हो पाता है। तो आप लोग देख लीजिए आपका कौन सा आईडी एक्टिव है, उसको वही खाली आप लोग इस ग्रुप में रखिए, बाकी दूसरा मुझे बता दीजिए तो मैं हटा दूं, तो एटलीस्ट कॉल स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट सेशन के बाद एनीवेज दूसरे भक्ति वृक्षा ग्रुप का 70th सेशन ओवर हो रहा है, तो उसके बाद वो उन ग्रुप के मेंबर्स को हटा देने के बाद वैसे भी स्पेस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा कॉल स्टार्ट करने में। तो अगर किसी को मैं गलती से हटा देता हूँ जिसका एक्टिव आईडी है, तो वो बुरा ना माने, वो फिर से ज्वाइन करके उसे इस कॉल को इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद आप सब लोग ने समय दिया सैटरडे को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। Hare Krishna, Prabhuji. हरे Thank you. कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।